Let's start. Share the slides. Okay, I have already given you these slides. Autonomous equations, right? So what are autonomous equations? First, let's give the example of autonomous equation. Autonomous equations are those equations which are the whose dy upon dt is a function of y only, right? For example, dy upon dt is equal to function of only y, right? Example, dy upon dx is equal to y square. So this dy upon dx is only a function of dependent variable, right? So these kind of equations are called autonomous equations. I will give you the example of the equation as we go. Practical example. सही है? So dy upon dx is a function of y, only dependent variable. Okay, so this is autonomous equations. So let's go to the theorem first and see how do we visualize such a systems graphically. Okay, so let's go to the theorem definition of autonomous equations. So if dy upon dx is equal to gy, which I have already told you function of y, is an autonomous equation, then the values of y for which dy upon dx equal to 0 are called equilibrium values or rest points. ठीक है, तो ऑटोनोमस इक्वेशन अगर dy अपॉन dx इक्वल टू gy से रिप्रेजेंट होती है तो y की वो वैल्यूज जिसमें dy अपॉन dx 0 होगा उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम वैल्यूज या रेस्ट पॉइंट्स. मे बी आपने सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि dy अपॉन dx अगर 0 होता तो इसका क्या मतलब है, स्टेबल पॉइंट्स हैं. कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू दिस वन. ठीक है, तो वो वैल्यूज y की जिसमें dy अपॉन dx 0 हो जाए, यानी स्लोप इसका क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो पॉइंट्स क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कहलाते हैं. तो इन पॉइंट्स की मदद से हम सिस्टम को, इस इक्वेशन को समझ सकते हैं कि इसका बिहेवियर क्या है. तो जब हमारे पास इक्विलिब्रियम वैल्यूज आ जाएंगी, रेस्ट पॉइंट्स आ जाएंगी, तो हम फेस प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे इसका कर्व, सॉल्यूशन कर्व्स बनाएंगे, राइट? वी विल मेक अ सॉल्यूशन कर्व्स बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम वैल्यूज. ठीक है, उससे क्या होगा, आप विजुलाइज कर सकते हैं. जैसे आपने स्लो फील्ड्स विजुलाइज की थी कि स्लो फील्ड की क्या होती हैं कि डिफरेंट स्लोप्स पर आपके सॉल्यूशन कर्व्स बनते हैं पूरे स्लोप प्लेन पर. ठीक है, एक्स वाई प्लेन पर आपने डिफरेंट स्लोप्स निकाले थे बहुत सारे पॉइंट्स में, उसके बाद आपने सॉल्यूशन कर्व्स बनाए थे. ठीक है, तो सॉल्यूशन कर्व बात है कि इसके एक्चुअली इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या हैं. सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, इसलिए हम सॉल्यूशन कर्व्स बनाते हैं. ठीक है, तो इट हेल्प्स अस टू विजुलाइज कि सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स में के बाद कैसे कर रहा है बिहेव. So I'll give you an example. Actually, I have taken this example from Thomas book. तो उसको मैंने follow किया है, and I will ask you to read this section about autonomous equations. Maybe in chapter 17 में होगा, तो you can see it yourself. Autonomous equation. ठीक है? तो this is CLO. अच्छा, this is covering CLO2. तो cover CLO2. ठीक है, तो it talks about non-linear equations and how to find the stable points. तो हम stability study करेंगे इसकी कि system stable है या नहीं है. Okay, so we will only learn about the equation, not the system. System में क्या होता है कि दो equation, differential equation होगी, उसको आप study करके उसकी जो stability निकालते हैं वो actually main stability होती है system की. लेकिन we are just studying one equation. ठीक है, system को study नहीं करेंगे. Because as I saw in the course, it is not the exactly part of the
पार्ट ऑफ द कोर्स नहीं कि सिस्टम को एक स्टडी करें, लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। जब आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, यू कैन सॉल्व इट, देयर इज नो प्रॉब्लम विद एनी मेथड। अगर दो डिफरेंशियल इक्वेशन हो और इज अ सिस्टम, इसको हम डील कर रहे हो, तो उसको इट्स अ डिफरेंट मेथड to solve and understand the stability. That is also important. So it's not written in the course outline, so I'm not going to cover that. But in the future, you will get this done by any other teacher. Okay. Okay. So and see, it's not a part of CLO, so we cannot cover. It's not necessary to cover. Can't change the CLOs now. Okay, so ऑटोनॉमस इक्वेशन समझ आ गई। वो इक्वेशन जो dy अपॉन वो डिपेंड करती है, उसका स्लोप डिपेंड करता है ओनली उसके डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ठीक है, नॉट इज अ फंक्शन ऑफ x, y, इट्स ओनली अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है। वैसे इक्वेशन जो बनती है नॉर्मल जो हमने पढ़ी है वो क्या होती है, dy अपॉन dx इक्वल टू इज अ फंक्शन ऑफ x, y, x भी होगा y भी होगा। आप जो भी इक्वेशन आपने पढ़ी है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, वो इस तरह ही होती है, ठीक है। Okay. Okay, I have already provided the slides to CRs, so please ask from CRs. ठीक है, तो वैसे हम जो इक्वेशन पढ़ी है dy अपॉन dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y पढ़ी है, राइट। कोई भी इक्वेशन देखें इट शुड बी इन दिस फॉर्म। लेट्स से कि dy अपॉन dx प्लस x y इक्वल टू लेट्स से ये 0 है, ठीक है, ये इक्वेशन है फॉर एग्जांपल। तो आप इसके फॉर्म क्या हुई, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो इसका मतलब dy अपॉन dx इज अ फंक्शन ऑफ x, y, f x, y। अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है फंक्शन ऑफ y है, ठीक है, जो मैंने इस तरह बताया आपको, ठीक है, ऑटोनोमस इक्वेशंस। ओके, सो ये आपको ऑटोनोमस इक्वेशन क्लियर हुई। और अब हम, और इक्विलिब्रियम वैल्यूज क्या होती हैं ऑटोनोमस इक्वेशन की, वो वैल्यू जिन पर स्लोप 0 होता है, राइट। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम वैल्यूज और रेस्ट पॉइंट्स। तो आइए एग्जांपल देखते हैं और इसको समझते हैं, क्वेश्चन को विजुलाइज करते हैं सॉल्यूशन इसका, ठीक है। So this is the equation which is given in the book, 1/5 ln 5y minus 15 equal to x plus 1। तो हमें क्या है, इसको इस फॉर्म में लाना है इक्वेशन को कि वी कैन फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं इक्वेशन, dy अपॉन dx, ठीक है, 1/5 सेम। और इसका जब भी log 5y माइनस 15 होगा तो क्या आंसर आता है, जो भी log के अंदर हुआ वो आता है डिनोमिनेटर पे, राइट, 5y माइनस 15, ठीक है, जो भी log में होता है वो आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। 1/5 नीचे वाला, और जो इसके अंदर चीजें होती हैं वो डिफरेंशिएट होती हैं, राइट। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा इसका, d5 dy अपॉन dx और 15 को डिफरेंशिएट करो तो 0 आएगा, राइट, इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करो dx अपॉन dx इक्वल टू 1, और 1 का 0 आ गया, राइट। तो आपकी ये पूरी इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। इज इट क्लियर, इसको डिफरेंशिएट किया हमने। जब भी लॉग को डिफरेंशिएट करते तो उसके जो आर्ग्यूमेंट होता है वो नीचे डिनोमिनेटर पे 5y माइनस 15, और बाकी जो अंदर आर्ग्यूमेंट होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने डिफरेंशिएट किया 5 dy अपॉन dx इक्वल टू, और 15 का डिफरेंशिएट 0,
इक्वल टू dx अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस 1 का 0. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. ओके, तो हेज द इक्वेशन. अब इसको रीअरेंज करके हमने dy अपॉन dx लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, और लेफ्ट साइड पे है, और बाकी एलिमेंट जो है इसके वो राइट साइड पे ले जाएंगे. तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी dy अपॉन dx इक्वल टू 5y माइनस 15. 5 को कॉमन लिया, 5 माइनस 3 आ गया. ठीक है, अच्छा. अब ये dy अपॉन dx आप देखें इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली, सो इट इज ऑटोनोमस इक्वेशन. ठीक है, अब ये बताएं कि dy अपॉन dx किस y की वैल्यू पे होगा 0. what should be the value of y at which dy upon dx equal to 0. ठीक है, तो वो वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो 5 से 15, 15 minus 15 equal to 0. So the only value at which this autonomous equation becomes 0 is is at y equal to 3. ठीक है, so the slope of the autonomous equation is 0 means we have found the equilibrium point. This is the equilibrium point by definitions. Equilibrium values or rest point. ठीक है, y is equal to 3. तो इस इक्वेशन के लिए इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, और या रेस्ट पॉइंट क्या होगा, y equal to 3 हो गया, राइट. सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड hopefully autonomous equation and the equilibrium values with an example. Okay, let's take another example. Example of equilibrium values. Okay, let's see this equation. dy upon d equal to y plus 1 y minus 2. तो ये भी autonomous equation है. ओके, सो इस इक्वेशन का क्या बनेगा, ये y इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो ये dy अपॉन dx 0 हो जाएगा, राइट. y की किस वैल्यू पे dy अपॉन dx 0 हो जाएगा, आइदर माइनस 1 और ये 2 पे. तो y इक्वल टू माइनस 1 एंड y इक्वल टू 2 आर 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स या रेस्ट पॉइंट्स. ठीक है, तो ये ऑटोनोमस इक्वेशन है, क्लियर है. राइट साइड ओनली फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज y, और y इक्वल टू माइनस 1 एंड y इक्वल टू 2 आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स. ठीक है, तो this is all about this definition. ठीक है, okay, now let's see. Now the main things come. Okay, अब हमें इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाना है. ठीक है, अब सॉल्यूशन जिसका जो बना रहे हैं हम ग्राफिकल बना रहे हैं, राइट. इट्स सिमिलर टू द स्लोप, हमने लाइंस की थी ना, स्लोप फील्ड्स. स्लोप फील्ड पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने की हैं उसके आपको स्लोप्स हमने बनाए थे, राइट. दैट वी कैन विजुअलाइज कि इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं ग्राफिकली. एंड अगर हम ऑटोनोमस इक्वेशन के, दिस इज ऑटोनोमस इक्वेशन, उसके अगर ग्राफ बनाना तो हमें क्या ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो नीचे हम बताएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले to construct a graphical solution to an autonomous equation we make a phase line for the equation. सही है, एक फेज लाइन बनाएंगे which show the equation's equilibrium values. ठीक है, फेज लाइन क्या होती है ये देखें. सबसे पहले let's take this equation, simple equation. This is a equation जिसका हम ये बनाएंगे, सॉल्यूशन कर्व्स बनाएंगे. ठीक है, सबसे पहले हमें फेज लाइन बनानी है. फेज लाइन क्या होती है, स्टेप 1 है ड्रॉ अ नंबर लाइन फॉर y and mark the equilibrium values y equal to minus 1 and y equal to 2 where dy upon dx equal to 0. सबसे पहला स्टेप क्या बता रहा है कि एक हम लाइन, नंबर लाइन लेंगे. ठीक है, सही है, ये है y की नंबर लाइन है. ठीक है, इसमें y की वैल्यूज हैं ओनली. तो इसको ये नहीं समझेगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो x होना चाहिए. इट इज जस्ट अ नंबर लाइन जो शो करेगा कि डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स शो करने. ठीक है,
ड्रॉ अ नंबर लाइन फॉर y एंड मेक द इक्विलिब्रियम वैल्यूज y। अच्छा, y इक्वल टू -1, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में नंबर लाइन है, स्केल है, इसमें हमने एक -1 वैल्यू पुट की, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, और एक यहाँ 0 होगा, यहाँ समझे 2 होगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, draw a number line for y and make the equilibrium values y equal to -1, y equal to y2 where dy upon dx, ठीक है। तो इन वैल्यूज पे, y की वैल्यूज पे dy upon dx 0 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, ओके लेट्स फॉलो, इसको मिटा दें, नीचे वैसे ही बना हुआ है, तो ये मैंने आपको समझाने की बताई, समझाया कि कैसे बनेगी, ठीक है। ये मैंने बनाया है, ठीक है, y इक्वल टू माइनस और 2, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, इज इट ओके फॉर एवरीवन, सिंपल है जी। सर वाई एक्सिस पर नहीं बनेगी नंबर लाइन, वाई एक्सिस पर नहीं बनेगी नंबर लाइन, वाई एक्सिस पे क्या मतलब, ये नंबर लाइन है, एक्चुअली नंबर लाइन को समझो एक स्केल है, ठीक है। अब स्केल को आपको, एक स्केल है ना, अब y इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग, इसका हमारे पास जो dy अपॉन dx इज एक्चुअली dy अपॉन dx द फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यूज ही y की वही वैल्यूज पता चल सकती हैं जिसमें dy अपॉन dx 0 है, ठीक है। नंबर लाइन इज दिस, डोंट वरी अबाउट दिस इज y और x, ठीक है, बिकॉज दिस ऑटोनोमस इक्वेशन इज अ फंक्शन ऑफ y, so we are making it on the simply x-axis, it's a number line, there is nothing to do with the x and y axis। एक्स एंड वाई एक्सिस जब भी हम ग्राफ बनाते हैं उसका मतलब ये है कि हम एक्स के रिस्पेक्ट से वाई को स्टडी कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द टाइम एंड सीइंग द इफेक्ट ऑफ द टाइम ऑन द वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस क्या होता है हमारे लिए, द स्टडी जिसको हम कर रहे थे, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको जिसको अपने वेरिएबल ऑफ स्टडी, अभी हम स्टडी क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वाई को सिर्फ हम देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, दिस इज जस्ट वी आर इमेजिनिंग वाई ऑन द स्केल, देयर इज नथिंग टू डू विद एनी सिस्टम और effect of x to y, only we are just visualizing the equilibrium points, ठीक है। y में भी बना सकते हो इसको, you can make it into y, there's no problem, only thing is that you will not be able to understand जब आप second step में जाएंगे, ठीक है। okay, very nice, you understand very fast, okay, very nice, okay। number 2 क्या है, identify and label the intervals। अच्छा, where y dash is greater than 0 and y dash is less than 0। अब ये second point क्या है, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मेन है आपका पॉइंट। इसमें देखो कि हमें इंटरवल्स कौन से फर्स्ट थिंक अबाउट कौन से इंटरवल्स हैं, एक ये इंटरवल है, एक इसके दरमियान इंटरवल है, और 2 के बाद है। तो 3 इंटरवल कौन से हमारे पास, जब y ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, राइट, एक ये इंटरवल है। दूसरा इंटरवल क्या है, -1 और 2 के दरमियान है, जब y लेस देन 2, ठीक है, और ग्रेटर देन -1 है, ये एक ये इंटरवल है। और दूसरा इंटरवल क्या है, जब y आपका लेस देन -1 है, ओके। सो दीज आर द 3 इंटरवल्स। अब मुझे बताएं, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन कि ये बताइए कि मुझे बताइए कि जब y ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है, जब y इज ग्रेटर देन 2 होगा, तो बताइए यहाँ इस इंटरवल पे at which y is greater than 2, what is the slope, is it increasing slope or decreasing slope। अब बताओ ये y डैश जो होगा यानी स्लोप, इट इज ग्रेटर देन 0 यानी स्लोप पॉजिटिव है, या y डैश
लेस देन 0 है इस इंटरवल पर? हाउ डू यू नो? इंक्रीजिंग कैसे? कैसे इंक्रीजिंग है? हु कैन टेल? ओके, सो अब आप देखो, dy अपॉन dx, y की वैल्यू 2 रखो, 2 और 2 से ज्यादा रखो यहाँ पे। y की वैल्यू, ये वाली तो आपकी पॉजिटिव ही आएगी हमेशा, क्योंकि y की वैल्यू 2 से 2 हो या 2 से ऊपर, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? 2 रखो, 3 रखो, तो ये 3 रखोगे तो 3 4 हो जाएगी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल। इसकी वैल्यू रखोगे 3, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगी? 1। तो इसका मतलब ये है कि जब भी y की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी तो ये सारी, इसका जो पूरा स्लोप होगा dy अपॉन dx, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, y डैश। इज इट क्लियर? जो भी y की वैल्यू रखोगे, देखो ये तो आपको पता है प्लस हो रहा है ना, +1, तो जब +1 का मतलब है कि ये इसकी पूरी वैल्यू तो प्लस आएगी, चाहे y की वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, जो भी रखो। इसकी वैल्यू देखो 2 पर ये 0 होगा dy अपॉन dx, तो 2 के बाद की वैल्यू क्या होगी इसकी? उस वक्त ये क्या होगा? ये पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, राइट? तो dy upon dx will be greater than 0. Is it clear this point? हाँ, जो भी लेक्चर सुन रहा है, होपफुली सब बैठे होंगे, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ये y इज, जब भी y की ये जो इंटरवल है, जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, नॉट इक्वल टू, y ग्रेटर देन 2 है, इट्स नॉट इक्वल टू 2, ये स्लोप जो है ग्रेटर देन 0 कैसे हुआ? दिस इज माय क्वेश्चन। यस क्लियर है? किसी ने कहा यस क्लियर है, क्लियर है, गॉट इट। अच्छा, अच्छा, हम करेंगे y इज लेस देन -1 करेंगे, ठीक है? तो मुझे बताइएगा। तो अभी आई हैव टू स्टॉप द शेयर, सो प्लीज कम बैक इन 5 मिनट्स के बाद आ जाइए, क्योंकि मीटिंग इज अबाउट टू ओवर, राइट? सो वी हैव टू कम बैक अगेन, ठीक है? 2 मिनट में बन जाएगी तो बेहतर है, वी विल री स्टार्ट अगेन आफ्टर 5, एग्जैक्टली 5 मिनट्स, ठीक है? ओके।